Sir, hello my dear students, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind and हम अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं राइट अभी तक हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जाना एंड देन वी टॉक अबाउट हाउ टू चार्ज अ बॉडी राइट ये हमने डिस्कस किया नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द इलेक्ट्रिक करंट हाउ वी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक करंट एसआई यूनिट फॉर्मूला एंड आप सर्किट डायग्राम्स कैसे बना सकते हो ठीक है एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कैलकुलेट किया जाता है एंड इवन हाउ इट फ्लोज इनसाइड अ कंडक्टर ये बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स पहले ही बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ठीक है क्योंकि ये एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है एंड जनरली इसका वेटेज हर एक क्लास में बहुत ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू दी अदर टॉपिक्स. So we are going to discuss it in very detail, all right, and you all know that we do deal with the school examination as well as the Olympiads level. So basically what we deal with is कि हम लोग आपको बताते हैं how to handle any एग्जामिनेशन राइट आप एक ही नॉलेज को गेन करके स्कूल एग्जामिनेशन को भी क्लियर कर सकते हो एंड उसी नॉलेज को गेन करके यू कैन क्लियर द ओलंपियाड्स लेवल ऑल्सो that is the main thing for us so that we make you prepare for the examinations both the examinations actually if you want any dpp or study material you can access them through our telegram channel what you need to do is you need to write the code ttb08 in the search box of the telegram app you have to write that and then you will be getting the access to the dpp's and study material along with the notifications of the upcoming videos. And now see, this is the team which is doing very much great work and we are doing very hard work so that we provide you the lectures, the content, the very much focused content towards your studies and also your syllabus, the school syllabus, also the Olympiad syllabus. That is our aim and we are making it very much clear to you that सारे ही topics आप सभी को clear हो सके and you go for the Olympiads and the school examination. That is our intention of preparing these lectures for you all. Now see, this is the good thing which is I am going to tell you. You have to go on this website www.talkingtextbooks.in. जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे you will be getting two type of packages ठीक है you will be getting the full package you will be getting the test series right full package के अंदर as the name suggests full package means सब कुछ mean आपको एक एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें चाहिए होती है द मिनिमम थिंग्स यू नीड टू क्लियर एन एग्जामिनेशन that is what we have provide in the full package and in the test series we have provide you the testings also right so basically what we are providing in the full series is you will be getting the comprehensive study material you will be getting the recorded and live classes you will be getting homework submission feature you will be getting periodic test papers along with the bi-weekly quizzes all right that is the main thing you are going to get in the full series right the full package you can say also in test series you will be getting the bi-weekly quizzes periodic test papers along with the live and the recorded lectures right and if you are interested in buying them you can use my code CYLive and you can definitely write this out you will be getting a 30% discount when you use this code right CYLive so you should definitely remember it also if you have any query regarding these packages you can call us and the number is 919549041111 so you can note down this number if you have any query you can definitely call on that number and all your queries will be resolved over there all right now let's move on to the promise section promise yourself that you will be watching the whole lecture you will be making proper notes and you will be revising on the daily basis revision बहुत ज़रूरी है हर एक बार का right हर एक chapter में you should revise this is 6th chapter right अब तक हमारे 5 chapters already हो चुके हैं so make sure कि आप 6th chapter पढ़ते पढ़ते बाकी के 5 भूल ना जाएं right and भूल नहीं जाने के लिए what you need to do you need to revise so make sure that you revise daily at least 15 minutes a day that is what I am telling you from the very start right you should definitely revise ठीक है तो अब हम क्या करते हैं हमारा चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी उसका लेक्चर 3rd स्टार्ट करते हैं that is electric current we will be talking about current right but the main things we will be looking forward to do in this lecture is electric circuit symbols हम लोग देखने वाले हैं कैसे सिम्बल्स हैं कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वी विल बी वॉचिंग दैट इलेक्ट्रिक सर्किट क्या सर्किट होता है
फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एमीटर, व्हाट इज दैट, व्हाई इट इज यूज्ड, वेयर इट इज यूज्ड, हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज. दीज आर द मेन टॉपिक्स which we are going to know, ठीक है, in this lecture itself. Now see, यहाँ पे हम बात करें सर्किट सिंबल्स की. तो देखो आपके आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है. इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का मतलब कि जैसे बल्ब वो एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, सेल ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है. इवन अदर थिंग्स लाइक वायर, ठीक है, स्विच एंड ऑल द थिंग्स विच मेक्स अ सर्किट, ठीक है, मीन्स कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक समथिंग जो कि आपके सर्किट को कंप्लीट कर रही है, दोज आर द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ठीक है. अब इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को ड्रॉ करने के लिए, बिकॉज व्हेनेवर, जैसे लेट्स से कि इंडिया में कोई साइंटिस्ट है कुछ नया सा डिस्कवर करता है, ठीक है. अब वो इलेक्ट्रिक जो सिंबल्स हैं उनको बनाना चाहता है ना. अगर वो अपना मैसेज दूसरों को कन्वे करना चाहता है, व्हाट ही फाइंड आउट, उसने जो भी फाइंड आउट किया है वो अगर दूसरों को कन्वे करना चाहता है तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, उसे कॉपी पर जो उसने सर्किट बनाया है उसे शो करना पड़ेगा, राइट. अब मान लो कि उसका ड्राइंग जो है खराब है, ठीक है. अगर ऐसा है तो क्या होगा, ड्राइंग खराब बनेगी. वो जब अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश करेगा, लोगों को बताएगा मैंने ये चीज़ फाइंड आउट की है, तो कोई समझ ही नहीं पाएगा बिकॉज उसका ड्राइंग बहुत खराब है, ठीक है. इस वजह से देयर आर सम सिंबल्स, छोटे छोटे सिंबल्स डिसाइडेड किए गए. साइंटिस्ट जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे उन्होंने डिसाइड किए दैट वी यूज़ दिस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, है ना, और इसको हम इस सिंबल से बताएंगे, राइट, ताकि जिसको ड्राइंग नहीं भी आती हो एटलीस्ट वो अपने मैसेज को कन्वे कर सके, दूसरों को समझा सके व्हाट ही नीड्स टू से, ठीक है. तो इस फील्ड में जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं तो अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए कुछ सिंबल्स डिसाइड किए गए कि ये सिंबल अगर जहाँ कहीं भी दिखा दैट मीन्स दिस रिप्रेजेंट सेल, दिस रिप्रेजेंट बल्ब, ऐसे करके कुछ सिंबल्स डिसाइड किए गए. उन सिंबल्स को क्या बोला जाता है, सर्किट सिंबल्स, ठीक है. द सिंबल्स यूज्ड टू इंडिकेट डिफरेंट कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सर्किट सिंबल्स. ऐसे छोटे छोटे सिंबल जो हर कोई ड्रॉ कर सकता है, इजी टू ड्रॉ है, इवन वो भी जिन्हें ड्राइंग्स नहीं आती, ठीक है, तो फिर वो लोग भी आराम से ड्रॉ कर सकते हैं. दैट मीन्स यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ द सर्किट सिंबल्स एंड देन यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, ठीक है. अब देखो सर्किट डायग्राम क्या होता है, इन्हीं सारे सिंबल्स को मिलाकर, ठीक है, इन्हीं सारे सिंबल्स को मिलाकर व्हेन यू ड्रॉ अ कंप्लीट पाथ ऑफ द करंट देन यू आर मेकिंग एंड सर्किट डायग्राम, ठीक है. सर्किट डायग्राम मतलब, सर्किट का मतलब एक क्लोज्ड पाथ जिसके ऊपर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है. वो पाथ, इफ यू ड्रॉ दैट पाथ ऑन द पेपर दैट मीन्स यू आर ड्रॉइंग अ सर्किट डायग्राम, ठीक है. तो ऐसे सारे कंपोनेंट जो हैं इन्हें मिलाकर जो सर्किट बनता है, उन सर्किट को अगर हम ड्रॉ करें यूजिंग दैट सिंबल्स, बहुत सारे जो सिंबल्स डिसाइडेड हैं उन सिंबल्स को यूज करते हुए, इफ आई ड्रॉ इट ऑन अ पेपर that figure is what is would be circuit diagram, ठीक है. तो ये जो सर्किट डायग्राम है ये क्या है, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉन यूजिंग these symbols is called a circuit diagram, ठीक है. तो यहाँ पर मेन चीज क्या है, सर्किट सिंबल्स, ठीक है. अलग अलग कंपोनेंट्स के क्या क्या सिंबल्स हैं वो हम देखेंगे. हमें ये पता होना चाहिए सिंबल क्या होता है एक्चुअली में. सर्किट सिंबल मतलब अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को आप किस तरीके से शो करते हो, रिप्रेजेंट करते हो ऑन अ पीस ऑफ पेपर, दैट इज सर्किट सिंबल, ठीक है. ऑल्सो इफ यू ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम यूजिंग दोज सिंबल्स, ठीक है, यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ सर्किट डायग्राम यूजिंग दोज सिंबल्स ओनली, ठीक है. नाउ लेट्स डू इट. हम लोग क्या करते हैं, सर्किट सिंबल्स बनाते हैं. बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनका हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्किट सिंबल बना सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज वायर, ठीक है. वायर को कैसे आप शो करने वाले हो, वायर आपको पता है कंडक्टर्स के बने होते हैं, राइट. एंड ये वायर्स एक्चुअली किस काम आते हैं, ये वायर पूरे के पूरे सर्किट कंपोनेंट्स को जोड़ते हैं. जैसे बल्ब को सेल से जोड़ना, सेल को स्विच से जोड़ना, राइट. उनको कनेक्ट करने के लिए वायर्स हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है. अब क्यों हम ये यूज़ करते हैं, हमें कनेक्ट करने की क्या ज़रूरत आती है, वो ये है कि जब कभी भी बल्ब होता है, ठीक है, लेट्स से इलेक्ट्रिक बल्ब को आप कहाँ लगाओगे, अपने रूम में, राइट. वो आप लगाओगे छत पे या फिर दीवार पर, राइट, लेकिन ऊपर, ताकि पूरे कमरे में रोशनी आ सके, राइट. स्विच आप कहाँ लगाओगे, थोड़ा नीचे, कि आप उसको ऑन ऑफ कर सको, राइट.
तो मतलब स्विच नीचे होना चाहिए, बल्ब ऊपर होना चाहिए, राइट, दूर होना चाहिए, दोनों बहुत दूर हो गए अपने आपस में। तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वायर्स को यूज़ करते हैं बेसिकली। सो वायर एक तरीके से सिर्फ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने का काम करता है, एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो फ्रॉम दैट टू। ठीक है, तो वायर को शो करने के लिए सर्किट सिंबल फॉर द वायर इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हो, दैट मीन्स यू आर ड्रॉइंग अ वायर। ठीक है, सेकेंड देखो, सेल। सेल को बताने के लिए एज यू कैन सी हियर, अगर हम एक सेल की बात करते हैं, दैट सेल इज एक्चुअली दिस टाइप ऑफ सेल, अ ड्राई सेल। वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ ड्राई सेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राई सेल के दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकेंड वन इज द नेगेटिव टर्मिनल। तो हम लोग क्या करते हैं, सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग लाइन बनाएंगे। ठीक है, दिस लॉन्ग लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ पॉजिटिव टर्मिनल, एंड पॉजिटिव टर्मिनल को हमने वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी सेल का नेगेटिव टर्मिनल बनाएंगे। एक शॉर्ट एंड थिक जो है लाइन, वो हमें बताएगी नेगेटिव टर्मिनल, एंड देन हमने नेगेटिव टर्मिनल को वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक और चीज़ तुम्हें ध्यान में रखनी है, वो क्या, आपको कभी भी पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल को बीच में कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, बिकॉज ये दोनों ही टर्मिनल एक ही सेल के हैं। ठीक है, सो इस सेल के अंदर के केमिकल्स के लिए तुम क्या कर रहे हो, जगह खाली छोड़ रहे हो। ठीक है, so you are representing a cell like this, a long line and a short thick line that is showing the negative terminal, long line is representing the positive terminal। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैटरी का। बैटरी जब क्या होता है, एक से ज्यादा सेल्स कनेक्ट कर दिए जाते हैं। ठीक है, वन बाय वन हमने क्या किया है, सेल्स को कनेक्ट कर दिया है। ये जो सेल्स जब कनेक्ट होते हैं, व्हाट दे कंस्टिट्यूट, दे आर कॉल्ड अ बैटरी। ठीक है, तो मतलब अगर एक से ज्यादा सेल्स अगर यूज हो रहे हैं, वी कॉल इट बैटरी। ठीक है, अब देखो बैटरी में यहाँ पे 3 सेल हम लोगों ने रखे हुए हैं, दैट मीन्स यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, हमें 6 बार जो है बताना है, 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव, बट दे हैज टू बी इन प्रॉपर ऑर्डर। इनको बनाने के लिए, इनको कनेक्ट करने के लिए, इस तरीके से कनेक्ट करने के लिए कि ये काम करे। ठीक है, ये बैटरी काम करे, इसको अच्छे से कनेक्ट करने के लिए यू शुड ऑलवेज यूज प्रॉपर कॉम्बिनेशन। हाउ टू डू दैट, लेट मी टेल यू। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाले का पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद अ लॉन्ग लाइन। हमने लॉन्ग लाइन लिया। ठीक है, ये जो लॉन्ग लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया है वायर, ये है पॉजिटिव टर्मिनल। अब फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल के लिए मैं शॉर्ट एंड थिक लाइन को कनेक्ट करूंगी लाइक दिस। ठीक है, अगेन इन दोनों को मैं वायर से कनेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड पे। सेकंड का भी पॉजिटिव हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सेकंड वाले का पॉजिटिव हम लोग ड्रॉ करेंगे, एंड देन सेकंड वाले का नेगेटिव। अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड वाले का पॉजिटिव एंड देन थर्ड वाले का नेगेटिव। दिस इज शोइंग अस द बैटरी ऑफ 3 सेल्स। कैसे, पॉजिटिव हमने लिया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, और फर्स्ट वाले सेल का फिर हमने ड्रॉ किया नेगेटिव टर्मिनल। एज यू कैन सी हमने स्पेस खाली छोड़ दिया, दैट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटिंग 1 सेल। अब हम नेक्स्ट वाले सेल को ड्रॉ करते हैं, अगेन अ पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो पहले वाले का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे वाले का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, फिर हमने देखा है दूसरे वाले का नेगेटिव टर्मिनल, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल हमने यहाँ ड्रॉ किया, एंड देन थर्ड वाले का पॉजिटिव, दिस इज द पॉजिटिव वन ऑफ द थर्ड सेल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द थर्ड सेल। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 हमने 3 सेल्स को कनेक्ट किया। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक्चुअली में जो प्रॉपर ऑर्डर है वो क्या है, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ऑलवेज रिमेंबर, एक सेल का पॉजिटिव, ठीक है, दूसरे सेल के नेगेटिव से ही कनेक्ट होगा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट नहीं हो सकता, एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्ट नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर देते हैं, नेगेटिव नेगेटिव कनेक्ट कर देते हैं, तो आपका सर्किट काम नहीं करेगा।
ठीक है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप क्या करें, आप जो जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्टेड हो, अपोजिट ही कनेक्टेड हो, ये आपको इंश्योर करना है, ठीक है। एंड दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट अ बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन, स्विच। अब ये जो स्विच होता है, ये स्विच दो तरीके से होता है, एक तो हम ऑफ स्टेट में भी देखते हैं, एक हम ऑन स्टेट में भी देखते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट बोथ, लेट मी टेल यू। फर्स्ट हम लोग देखते हैं किसके लिए, ऑन स्विच की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ऑन स्विच की, मतलब हमने स्विच ऑन किया हुआ है, अगर हमने स्विच ऑन किया हुआ है मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, दैट मीन्स करंट फ्लो हो रहा है, लाइट जल रही है, क्योंकि स्विच ऑन है, ठीक है। अब देखो ऑन स्विच में आपको दिखाना है कनेक्शन, ठीक है, एक प्रॉपर कनेक्शन दिखाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, वायर, ये स्विच के दो एंड्स एंड अगेन अ वायर, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड, दिस इज शोइंग अस द ऑन स्विच। यहाँ पे क्या है, ये ऑन स्विच है, राइट, दैट मीन्स करंट इज फ्लोइंग, देयर इज नो ब्रेक इन द पाथ, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ऑन स्विच बताता है। वहीं हम बात करें ऑफ स्विच की, अगर हम ऑफ स्विच को रिप्रेजेंट करना चाहें, दैट मीन्स काम कर नहीं रहा है, लेट्स से हमने ऑफ किया है स्विच तो लाइट नहीं जलती है, राइट। ऑफ स्टेट में जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो वर्क नहीं करता है, दैट मीन्स करंट फ्लो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ ब्रेक इन द पाथ। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट वी डू हियर, हम इन दो पॉइंट्स के बीच में, ये दो पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्विच को, यहाँ पर ब्रेक लगा देंगे। जैसे ही यहाँ पे एक ब्रेक है, बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड, सो देयर इज अ ब्रेक इन द पाथ। जैसे ही एक ब्रेक आ गया, दैट मीन्स पाथ इनकम्प्लीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट फ्लोइंग, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर रिप्रेजेंटिंग। इसके अलावा कुछ और नोटेशंस हैं जिनके थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं। तो ऑन स्विच को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और हम लोगों ने देखा है, वो क्या है, आई एम ड्रॉइंग हियर, इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से दो ब्रैकेट्स लेते हैं, ठीक है, कर्व्ड ब्रैकेट्स हैं, और उन दोनों के बीच में अगर एक डॉट है, दैट मीन्स इट इज ऑन स्विच, इट इज कनेक्टेड, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग, ठीक है। और अगर हमें ऑफ स्विच बताना है तो ये एम्प्टी कर्व्ड जो ब्रैकेट्स हैं, अगर वो एम्प्टी हैं दैट मीन्स इट इज इन ऑफ स्टेट, ठीक है, ऑफ स्विच है। और अगर बीच में एक डॉट है दैट मीन इट इज ऑन स्विच, ठीक है। दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट द स्विचेस इन ऑफ एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, ठीक है। अब आते हैं हम बल्ब पे। बल्ब को ड्रॉ करने के लिए सिंपल है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। व्हाट वी ड्रॉ, सबसे पहले एक लाइन, दिस इज शोइंग अ वायर, ठीक है। फिर हम इसके फिलामेंट को, बल्ब के फिलामेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ड्रॉइंग दिस, ठीक है। हमने क्या किया, उनको कर्व बना दिया है, कर्ल्स बना दिए जस्ट लाइक फिलामेंट, एंड मेक अ कर्व फॉर द ग्लास पार्ट, ठीक है। ग्लास पार्ट को बताने के लिए वी मेक अ सर्किल, एंड इनसाइड दैट सर्किल वी मेड द फिलामेंट, ठीक है, बाय कर्विंग द लाइन्स एंड जॉइन ऑल द लाइन्स, यू कैन डेफिनेटली जॉइन दैम, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट अ बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। ये है मेन, जो सबसे बेसिक यू कैन से इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, सबसे बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है। बट अब कुछ और एडवांस जो हैं कंपोनेंट्स हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जैसे कि फिक्स्ड रेजिस्टेंस। फिक्स्ड रेजिस्टेंस, आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज दैट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज एक्चुअली, लेट मी टेल यू बाय एन एग्जाम्पल। जब आप स्विमिंग करते हैं, ठीक है, जब आप स्विमिंग पूल में जाते हैं तो ट्राई वॉकिंग इनसाइड द वाटर। जब आप पानी में चलने की कोशिश करते हैं, यू फील लाइक कि पानी हम पे फोर्स लगा रहा है, हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, राइट, ये आपको फील होगा। व्हाट इज दैट, जो फोर्स आप फील कर रहे हैं, जो पानी आपके ऊपर फोर्स लगा रहा है, आपको बढ़ने से रोक रहा है, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ वाटर, ठीक है। इसी तरीके से जब करंट किसी कंडक्टर के अंदर से फ्लो होता है, तब कंडक्टर जो मटेरियल है एक्चुअली वो क्या करता है, वो उस करंट को क्या करता है, एक रेजिस्टेंस देता है, दैट मीन्स एक अपोजिंग फोर्स देता है, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस हर मटेरियल में होता है, अपने अपने लेवल पे हर मटेरियल में होता है, ठीक है। दैट इज द रेजिस्टेंस। अब हाउ टू रिप्रेजेंट अ फिक्स्ड रेजिस्टेंस, अगर फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, हाउ टू रिप्रेजेंट दैट,
हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन शो करते हैं, दैट इज ऑफ द वायर, एंड देन अ जिगजैग लाइन लाइक दिस. ये जो जिगजैग लाइन है, दिस इज शोइंग अस द फिक्स्ड रेजिस्टेंस. ठीक है. नेक्स्ट आप देखो रियोस्टैट. रियोस्टैट क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है. ठीक है, रियोस्टैट एक डिवाइस होता है, और इस डिवाइस में से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज रेजिस्टेंस की चूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये एक डिवाइस होता है जो कि अलग अलग वैल्यूज बताता है रेजिस्टेंस की. वी कैन चूज फ्रॉम दैट बॉक्स. इट इज अ समथिंग ऑफ बॉक्स जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस होते हैं. ठीक है, जो रियोस्टेट होता है, हाउ टू रिप्रेजेंट दैट, आप क्या करेंगे, पहले आप एक रेजिस्टेंस बना देंगे. ठीक है, लेट मी ड्रॉ दैट अगेन. पहले आप क्या करेंगे, आप रेजिस्टेंस बना देंगे. ठीक है, उसके बाद आप एक एरो बना देंगे, दैट यू चूज दिस रेजिस्टेंस. ठीक है, सो दिस इज शोइंग अस व्हाट, द रियोस्टैट. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी अबाउट द वेरिएबल रेजिस्टेंस. व्हेन द रेजिस्टेंस इज चेंजिंग, वेरिएबल वैल्यू है उसका, चेंजिंग वैल्यू है, तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रेजिस्टेंस एंड देन एन एरो. अगर ये एरो और ये रेजिस्टेंस हमने बनाए हैं, दैट मीन दिस इज शोइंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस. ऑलराइट, नाउ सी एमीटर. एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट को मेजर करता है. किसी भी सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमें बताता है एमीटर. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इट मेजर्स करंट. ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली वायर बनाना है, एक सर्कल बनाना है, सर्कल के अंदर कैपिटल ए लिखना है, एंड अगेन अ वायर. सो दिस इज शोइंग द सिंबल ऑफ एमीटर, द डिवाइस विच मेजर्स करंट. ठीक है, इसी तरीके से वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर भी एक डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, एज यू कैन से द इलेक्ट्रिक प्रेशर. ठीक है, तो ये भी क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करना भी बहुत इजी है. व्हाट यू नीड टू डू इज ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ अ सर्कल, राइट कैपिटल V and draw a line. This is how you are going to draw the voltmeter which measures potential difference. ठीक है, अब देखो गैल्वेनोमीटर. ये जो गैल्वेनोमीटर है एक्चुअली में, दिस इज अ डिवाइस विच गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट. किसी भी सर्किट के अंदर कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, आइदर लेफ्ट और राइट, ये वो हमें बताता है. तो ठीक है, ये जो गैल्वेनोमीटर है, दैट इज ऑल्सो अ डिवाइस which gives us the direction of current. और इसे ड्रॉ करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें सिंपली क्या करना होगा, आपको एक जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी. यू हैव टू राइट द कैपिटल G and then draw a line. ठीक है, so that's how you are going to represent all these symbols. Make them as fast as you can. ऑलराइट, तो देखो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे के सारे सिंबल्स को बना सकते हैं. ठीक है, हम लोगों ने सभी तरीके के सिंबल्स को देख लिया है. जो गैल्वेनोमीटर का सिंबल है, बिकॉज ये क्या करता है, आपको डायरेक्शन शो करता है. ठीक है, सो आइदर यू राइट हर G, आइदर यू मेक एन एरो इनसाइड दैट सर्कल. ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम एक लाइन बना के, सर्कल बना के, उसके अंदर एक एरो बना सकते हो, एंड दिस एरो विल शो यू दैट इट इज द सिंबल ऑफ गैल्वेनोमीटर. ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन मेक ऑल द सिंबल्स. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज इलेक्ट्रिक सर्किट. तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, देखो करंट को फ्लो होने के लिए हमें ये बात पता है कि भाई हवा में से तो करंट फ्लो होता नहीं, राइट. करंट को फ्लो होने के लिए एक पाथ चाहिए, एक रास्ता चाहिए. ठीक है, वो रास्ता किसका बना होना चाहिए, कंडक्टर्स का बना होना चाहिए, तभी तो करंट फ्लो कर पाएगा.
तो वो पाथ जिसमें करंट फ्लो कर पाता है सेल के एक टर्मिनल से निकलते हुए सेल के दूसरे टर्मिनल तक पहुंच पाता है, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, देखो, द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल एंड रिटर्निंग टू द अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। मेक श्योर कि क्या हो रहा हो, सेल के दोनों टर्मिनल कनेक्टेड हों। एक टर्मिनल से जो है करंट निकलता हुआ पूरे सर्किट में घूमता हुआ वापस नेगेटिव टर्मिनल में चला जाता है। ठीक है, सो ये बताने के लिए कि करंट को यहाँ जाना है, मेक श्योर यू पुट कंडक्टर्स इन दैट पाथ। ऑलराइट, अब देखो, इट कंसिस्ट ऑफ कंडक्टिंग वायर्स। क्या क्या होना चाहिए? वायर्स होने चाहिए। उसके थ्रू, वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट क्या हो सकता है? फ्लो हो सकता है। जहां आपको लेकर जाना है, ठीक है, वहां आप करंट के लिए कंडक्टिंग वायर्स को प्लेस कर सकते हो। एंड अदर रेजिस्टेंसेस लाइक लैम्प्स एक्सेट्रा, अलग अलग चीज़ें वहाँ होनी चाहिए। डेफिनेटली तुम जो भी चीज़ को वर्क करवाना चाहते हो, किसी भी कंपोनेंट को यूज़ करना चाहते हो, लेट्स से तुम फैन को यूज़ करना चाहते हो, तो दैट विल ऑल्सो बी टेकन एज ए रेजिस्टेंस। ठीक है, वो फैन, बल्ब, रेफ्रिजरेटर्स एंड एनी अदर थिंग। ठीक है, सो डेफिनेटली यू कैन यूज सम रेजिस्टेंसेस, एनी डिवाइसेस विच यू वांट टू मेक वर्क। ठीक है, बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में हमें ये कनेक्ट करने हैं, along which an electric current flows। अब उस पाथ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ऑलराइट, अब देखो, इसको इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती है? पहली कंडीशन, कंडक्टर्स का बना होना चाहिए, पूरा सर्किट कंडक्टर्स का बना होना चाहिए। अगर बीच में कहीं पर भी इंसुलेटर आ जाता है तो वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो पाथ है दैट शुड बी मेड अप ऑफ कंडक्टर्स। सेकेंड थिंग, व्हाट इज दैट सेकेंड थिंग? सेकेंड थिंग इज एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए एक क्लोज्ड पाथ। क्या होना चाहिए? एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। अगर कहीं से भी ब्रेक हो जाता है सर्किट, लेट्स से कोई वायर बीच में से टूट गया, ठीक है, या फिर एज यू कैन सी कि भाई कोई सेल खराब हो गया, स्विच तुमने ओपन कर दिया है, कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि पूरे रास्ते को बंद होने से रोकती है, उस वक्त वहां पर करंट फ्लो नहीं होगा। सो यू नीड टू मेक फर्स्ट अ क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए अगर आपको करंट फ्लो करवाना है तो। एंड सेकेंड थिंग, इट शुड बी मेड अप ऑफ कंडक्टर्स। ये दो ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं विच कैन डेफिनेटली मेक द करंट फ्लो इनसाइड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आप टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट को देख सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज दी ओपन सर्किट। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट, खुला हुआ, दैट मीन्स इट इज ब्रेक एट सम पॉइंट, किसी न किसी पॉइंट पर ये ब्रेक है, ठीक है, टूटा हुआ है, सो द करंट इज नॉट फ्लोइंग। ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है दैट इज टर्म्ड एज ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब कहीं ना कहीं पाथ ब्रेक हो चुका है। राइट, एज यू कैन सी हियर, लाइट नहीं जल रही, यहाँ पे जो छोटा सा बल्ब है ये नहीं जल रहा है। राइट, दैट मीन्स इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों करंट फ्लो नहीं हो रहा है? बिकॉज द स्विच इज ओपन। राइट, यू कैन सी द स्विच इज ऑफ हेयर। राइट, सो द सर्किट इज ब्रोकन हेयर, यहाँ से टूट गया है ये सर्किट, दैट्स वाई यहाँ पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, एंड ड्यू टू दैट यहाँ पर हम बोलने वाले हैं इसे ओपन सर्किट। सो ऐसा सर्किट जो वर्क नहीं करता है दैट इज टर्म्ड एज द ओपन सर्किट। ठीक है, तो अगर आपने अपने कमरे की जो लाइट है उसे अगर आपने ऑफ करके रखा हुआ है, दैट मीन्स आपने अभी सर्किट को ब्रेक कर दिया, आपने सर्किट को ओपन बना दिया है। जब आप स्विच को ऑन कर देते हैं और करंट फ्लो होने लग जाता है, लाइट जल जाती है, एट दैट मोमेंट यू विल बी सेइंग दैट द सर्किट इज क्लोज्ड। ठीक है, तो देखो अभी हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। हाउ वी कैन मेक इट? हमारे पास यहाँ तीन चीजें हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तीन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, बल्ब, स्विच, सेल, और इनको कनेक्ट करने वाले जो वायर्स हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बल्ब बनाते हैं। ठीक है, सो वी मेड अ बल्ब हियर। बल्ब का एक टर्मिनल कनेक्ट है सेल का पॉजिटिव टर्मिनल से, सो बल्ब का एक टर्मिनल कनेक्ट है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से। बल्ब का दूसरा जो है एंड वो कहाँ से कनेक्टेड है? स्विच के एक टर्मिनल से। सो बल्ब का सेकेंड वाला जो है वो किससे कनेक्टेड है? स्विच के एक टर्मिनल से कनेक्टेड है। एज यू कैन सी द स्विच इज ऑफ, तो मैंने बना दिया स्विच ऑफ की कंडीशन।
अब देखो स्विच का ये पार्ट किससे कनेक्टेड है, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये रहा सेल का नेगेटिव टर्मिनल, द शॉर्ट इन द थिक लाइन एंड इट इज कनेक्टेड टू द switch. This is positive, this is negative. The circuit is open here, the circuit is broken here, so this will not work, the current will not flow here. ठीक है, लेकिन जब आप ऑन कर देंगे तब करंट फ्लो हो जाएगा। इसके अलावा भी और ऐसी चीज़ें हैं जो कि हो सकता है आपके सर्किट में मौजूद हो, जैसे हो सकता है आपने जो सेल लिया हो वो खराब हो, वो फ्यूज़ हो। ठीक है, सो मेक श्योर यू यूज़ वर्किंग बल्ब। उसके अलावा हो सकता है कि तुम जो सेल यूज़ कर रहे हो वो खराब हो, वो डेड हो चुका हो। ठीक है, सो मेक श्योर यू यूज़ अ वर्किंग सेल। ऑल्सो हो सकता है आपने जो कनेक्शंस बनाए हैं वहाँ वो कहीं लूज हो। ठीक है, सो मेक श्योर यू मेक कनेक्शंस टाइट। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं देन यू कैन मेक योर सर्किट वर्किंग। ठीक है, सो दिस इज द ओपन सर्किट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लोज्ड वन। क्लोज्ड वन में आप देखो, क्लोज्ड वन में आप देखो जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, दैट मीन्स करंट इज फ्लोइंग। करंट इज फ्लोइंग मतलब जो कंडीशंस हैं कि कंडक्टर्स होने चाहिए और क्लोज होना चाहिए, पूरा रास्ता बंद होना चाहिए, तो वो फुलफिल हो रही है, दैट्स वाई यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसका अगर हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो देखो ये हमने बनाया है एक बल्ब। बल्ब का एक टर्मिनल कनेक्ट है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, बल्ब का दूसरा टर्मिनल कनेक्ट है स्विच से, और स्विच से हमने जो है इसको कनेक्ट कर दिया। द स्विच इज एन ऑन स्टेट। और अब देखो स्विच का दूसरा एंड कनेक्ट है सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये देखो हमने बना दिया सेल का नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ से कनेक्ट करते हुए हमने बना दिया स्विच से कनेक्ट करते हुए प्लस माइनस। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो यहाँ ब्रोकन नहीं है स्टेट, है ना। अगर आप बोलोगे कि ये तो गैप हो गया, ये गैप नहीं है, ये गैप हमने किस लिए छोड़ा है, बिकॉज दीज आर द केमिकल्स इनसाइड द सेल। ठीक है, दीज आर द केमिकल्स इनसाइड द सेल, सो ये यहाँ पे गैप नहीं है, एक्चुअली ये सेल ही है। ऑलराइट, सो दिस इज द क्लोज्ड पाथ। तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम हमने बनाया है ये बनाया है क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। ऑलराइट, देयर इज नो ब्रेक, एज यू कैन सी हियर द बल्ब इज ग्लोइंग, सो द सर्किट इज वर्किंग। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग जो कि हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बट बिफोर दैट लेट्स सी द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। पूरे सर्किट में आप कहीं पर भी स्विच को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, उसका कोई एक स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, जैसे आप अपने घर में कहीं पर भी स्विच लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट थिंग। ठीक है, अपना कन्वीनियंस को देखते हुए आप स्विच कहीं भी लगा सकते हैं, राइट। वैसे ही हम लोग सर्किट में कहीं पर भी स्विच को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो ये हमने एक बेसिक सा सर्किट डायग्राम बनाया जिसमें हमने सब कुछ लगाया। जैसे देखो सेल लगाया है पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, एमीटर लगाया है, ठीक है, वोल्ट मीटर लगाया है, रेजिस्टर लगाया है। सी यहाँ पे मेन चीज क्या है, एमीटर जो है वो हमने सीरीज में लगाया है। सीरीज का मतलब जो करंट है वो बाहर आता है आता है आता है, सो करंट इज नॉट गेटिंग एनी पाथ अदर देन दिस वन ओनली। यहाँ पे करंट को एक ही पाथ मिल रहा है। दिस इज शोइंग द सीरीज थिंग, वन बाय वन आफ्टर द अदर। ठीक है, करंट जाता है, इसमें जाता है, देन इट गोज हियर। बट हमने वोल्ट मीटर को अलग तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। हमने वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया हुआ है कैसे, पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल का मतलब क्या हुआ कि जब करंट यहाँ पहुंचेगा उसे दो रास्ते मिल जाएंगे, या तो वो इस रेजिस्टेंस में से चला जाए या फिर वो वोल्ट मीटर में से चला जाए। ठीक है, देयर विल बी टू पाथ्स, राइट, एंड दैट्स व्हाई इट इज शोइंग दैट द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ऑलवेज से वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं हम किस में, पैरेलल से कनेक्ट करते हैं, और एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड देन इट इज गोज बैक इनटू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। दिस इज द बेसिक यू कैन से इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम यूजिंग ऑल द मीटर्स। ठीक है, चलो अब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग इतने टाइम से पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट आर द डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, इट इज़ जस्ट अ ब्रांच। जैसे फिजिक्स के बहुत पार्ट है, फिजिक्स में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम साउंड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो अलग अलग टॉपिक्स हुए तो ये क्या हुए, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हुई। ठीक है, जो लाइट है वो ऑप्टिक्स ब्रांच हो जाती है, उसका नाम ऑप्टिक्स हम लोग रख देते हैं। ठीक है, जो साउंड है उसके लिए हम वेव्स के लिए जो है टॉपिक रख देते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी नाम से चलती है। सो दीज आर एक्चुअली द ब्रांचेस। ठीक है,
तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, दिस इज अ ब्रांच इन फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि चार्जेस कैसे इंटरैक्ट करते हैं। जो छोटे छोटे चार्जेस हम लोगों ने पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ठीक है। तो ये जो चार्जेस होते हैं, वी आर, देखो मैं आपको चार्जेस बोल रही हूँ, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। सो हाउ दे बिहेव विद ईच अदर, हाउ दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, इफ वी आर स्टडिंग अबाउट दैट मीन्स वी आर स्टडिंग द इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच है ये दो तरीके की, मीन्स ये एक फर्दर आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हुए मिलेगी। वाई सो, बिकॉज जो चार्जेस होते हैं वो रेस्ट पर भी होते हैं, है ना, और जो चार्जेस होते हैं वो मूविंग भी होते हैं। तो वो रेस्ट पर होते हैं तब वो कैसा बिहेव करते हैं, और जब वो मूव कर रहे होते हैं तब वो कैसा बिहेव करते हैं। तो वी स्टडीज दीज थिंग्स सेपरेटली, अलग अलग हम उनको स्टडी करते हैं। ऑलराइट, सो देखो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहली है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब भाई हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं चार्जेस एक दूसरे से कैसे इंटरेक्शन करते हैं जब चार्जेस रुके हुए होते हैं, दे आर नॉट मूविंग, दे आर एट अ प्लेस, कलेक्टेड एट अ प्लेस, एंड हाउ दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, दैट इज द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ये क्या बताता है कि जब चार्जेस फ्लो होते हैं तब वो एक दूसरे से कैसा बिहेव करते हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट द करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इनका जो डेफिनेशन है वो हम देखते हैं। सी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बताता है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट एंड देयर इफेक्ट्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम चार्जेस को डील कर रहे हैं, बट चार्जेस आराम से बैठे हुए हैं, एक ही जगह पे, रेस्ट पे हैं, दे आर नॉट मूविंग, तब अगर हम उनका स्टडी करते हैं दैन वी कॉल इट एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बट जब हम चार्जेस के मोशन की बात करते हैं, व्हेन दे स्टार्ट मूविंग, तब हम क्या नाम देते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन एंड देयर इफेक्ट्स इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है कि हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। इफ वी आर स्टडिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी देन वी आर स्टडिंग अबाउट चार्जेस, either charges at rest, either charges are in motion। अगर वो रेस्ट पे हैं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और अगर वो मोशन में है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम क्या करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ते हैं, क्योंकि अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक करंट, दैट मीन चार्जेस आर मूविंग, ऑलराइट। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज दैट इलेक्ट्रिक करंट? Electric current is a flow of electric charges called electrons in a conductor metal wire। जब भी किसी भी metal wire यानी कि कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह जब जाएंगे, तब हम क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर इनसाइड अ कंडक्टर इज एक्चुअली कंस्टिट्यूटिंग अ करंट, ठीक है। अगर मूव करे दैट मीन देयर इज द करंट, उनका फ्लो ही एक्चुअली करंट है, ठीक है। तो उनका जो फ्लो है दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एक्चुअली करंट, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन जो आप देख सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है एक पॉइंट से, दैट इज ऑल्सो नोन एज दी करंट। तो ये दो डेफिनेशन हैं, यू कैन चूज एनी वन एंड यू कैन रिमेंबर एनी वन, ठीक है। अब दोनों भी रिमेंबर कर सकते हैं, इट्स अपॉन योर चॉइस। नाउ सी, इनका फॉर्मूला कैसे लिखे, करंट का फॉर्मूला कैसे लिखे, तो उसके लिए हम देखते हैं कि मान लो Q अमाउंट का चार्ज, वी डिनोट चार्ज बाय कैपिटल Q, तो Q अमाउंट का चार्ज जो है फ्लो कर रहा है इन t सेकेंड्स, और यू कैन से इन t टाइम, देन द करंट इज, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेंशन करने के लिए वी ऑलवेज से अमाउंट ऑफ चार्जेस flowing in t time, ठीक है। if we divide the amount of charges flowing by the time taken, we are getting the value of the electric current। अगर हमें पता हो कितना चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, कितने टाइम में फ्लो हो रहे हैं, देन वी कैन कैलकुलेट करंट। करंट को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल I से, चार्जेस को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Q से, और टाइम को तो हम जानते ही हैं स्मॉल t से। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो Q है, व्हाट इज Q,
दिस Q इज एक्चुअली चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, क्या आप लोग को पता है? कूलम, दैट इज दी कूलम, ठीक है। चार्ज की जो यूनिट होती है दैट इज नोन एज द कूलम, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सो वी कैन राइट हियर SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है। और आपको पता है ये जो कूलम है ये एक्चुअली में बहुत बड़ा जो है चार्ज है। कैसे? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो बहुत छोटा होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? बहुत 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 छोटा चार्ज होता है, ठीक है। तो वो तो बिल्कुल आप नेग्लिजिबल मान सकते हो। इसी के लिए जब हमने डिसाइड किया कि ऐसा यूनिट क्या होना चाहिए चार्ज का, तो फिर वहाँ पे देखा गया कि हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को मिला के हम लोग चार्ज बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया कि 1 कूलम का जो चार्ज है ना, वो कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मिलके बना होगा? वो बना होगा चार्ज ऑन 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आप देख सकते हो कि 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितना चार्ज है उसको अगर आप ऐड कर दोगे तब जाके आपको 1 कूलम का चार्ज मिलेगा, ठीक है। सो ये जो 1 कूलम का चार्ज है ये इतना बड़ा है क्योंकि इसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। बट एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो बहुत ही छोटा है, ठीक है। इसी के लिए हमने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज के बजाय बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को मिला करके हमने क्या किया, यूनिट बनाया किसका, चार्ज का, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी यूनिट, ठीक है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। एम्पियर भी एक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। जैसे कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है, बिल्कुल वैसे ही एम्पियर भी एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्हीं के नाम पे हमने क्या किया, करंट का यूनिट लिखा, ठीक है, दैट इज एम्पियर। अब देखो अगर आप एम्पियर को डिफाइन करना चाहते हो तो देखो, अगर हम चाहते हैं कि हम 1 एम्पियर को बताएं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला, जो कि है करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम। तो इसका मतलब ये जो 1 एम्पियर है वो होना चाहिए 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। तो अगर हम बोलें कि भाई एक वायर के अंदर से 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड के अंदर, तो हम बोलने वाले हैं कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। दैट इज द डेफिनेशन। कैसे? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, ठीक है। तो अब आप इसे क्या करें, फटाफट से नोट कर लें, देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। ऑलराइट, चलो अब हम आगे चलते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस एमीटर। देखो एमीटर क्या होता है, एमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर्स करंट, करंट को मेजर करती है। सो लेट्स सी इट्स डेफिनेशन, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर करंट इज कॉल्ड एमीटर। अब इसका काम क्या होता है, ये बताती है कि भाई एक वायर के अंदर से, एक सर्किट के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। उसके लिए इसे क्या चाहिए, उसके लिए इसे चाहिए कि कम से कम इसका रेजिस्टेंस हो ताकि सारा करंट उसके अंदर से फ्लो हो सके। सो हम इसके लिए बोलते हैं दैट इट शुड हैव अ वेरी लो रेजिस्टेंस। इस डिवाइस के पास जो रेजिस्टेंस है वो बहुत बहुत कम होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, जब तुम्हें कोई तुम पे फोर्स लगा रहा है, तुम्हें आगे नहीं जाने दे रहा है, तो तुम कम फ्लो कर पाओगे ना। मीन्स एट दैट मोमेंट जब आप देख सकते हो, जब आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, आप स्विमिंग पूल में वॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, स्विम करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर पानी आपके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाता है तो आप बहुत ही कम आगे बढ़ पाएंगे, राइट। बिल्कुल सिमिलर होता है इसके केस में, ठीक है। जब करंट आगे बढ़ने की कोशिश करता है और ज़्यादा रेजिस्टेंस उसके सामने होता है तो करंट बहुत ही कम फ्लो कर पाता है, ठीक है। करंट को अगर ये मेजर करना चाहेगा तो डेफिनेटली इसे क्या चाहिए, इसे कम से कम रेजिस्टेंस चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करवा सके और उसको मेजर कर सके, ठीक है। और एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है वो क्या, इट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज मतलब 1 by 1, इट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ द सर्किट, ठीक है। ये इसका मेन बात है जो आपको एमीटर की अंडरस्टैंड करनी है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो जब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट को बताया गया, उस वक्त चार्जेस के बारे में किसी को नहीं पता था, ठीक है। उस वक्त तक क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है।
तो क्या माना गया कि भाई उस वक्त क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स तो डिस्कवर नहीं हुए थे, किसी को पता ही नहीं था कि भाई नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल भी कुछ होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी कुछ होता है। तो पहले के ज़माने में जब फिर ये करंट तो पहले बन गया है ना, अब बताएं कैसे कि भाई करंट क्या होता है, और ये पता चला कि करंट तो फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, राइट। अब करंट का मतलब है फ्लो ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स किसी को पता नहीं कि वो भी कुछ होते हैं। तो व्हाट दे सेड, उन्होंने बताया कि जहाँ कहीं भी पॉजिटिव चार्जेस जिस भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं वो ही एक्चुअली क्या होती है, करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं जहाँ वो फ्लो होते हैं वही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की। अब तुम मुझे बता सकते हो ये आराम से कि अगर देखो ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल, अब तुम मुझे बताओ कि अगर पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं, अगर पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं तो मुझे बताओ वो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, वो ऑलवेज पॉजिटिव से जाएंगे बाहर, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है ना, इसी वजह से वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हुए पूरे सर्किट में जाते हुए नेगेटिव टर्मिनल में चले जाएंगे, राइट। बट वी ऑल नो कि एक्चुअली में पॉजिटिव चार्जेस तो मूव नहीं करते, मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ठीक है। बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई तब क्या पता चला, तब हमें पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव टर्मिनल से बाहर जाएंगे, क्योंकि देखो नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वहाँ हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप सर्किट को कनेक्ट करोगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हुए पूरे सर्किट से होते हुए पॉजिटिव टर्मिनल में चले जाएंगे। करंट का डायरेक्शन क्या बताया, करंट का डायरेक्शन क्या बताया मैंने, प्लस से माइनस, ठीक है, प्लस टू माइनस, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर नेगेटिव टर्मिनल तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स का पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली में मूव करते हैं और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और फिर ये भी पता चला कि वो तो -2 प्लस मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर पूरे सर्किट से जाकर पॉजिटिव टर्मिनल में चले जाते हैं। तो क्या बोला गया, देखो दोनों अपोजिट हैं, दैट्स वाई वी कैन से कि जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, जहाँ पर भी जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ठीक उसके अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आपको मेन बात ध्यान में रखनी है। एंड यू ऑल नो कि डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये चीज़ में दोनों को काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए आपको ये बात बहुत 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 ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको एक नई बात बताती हूँ जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देखो जब कभी भी एक कंडक्टर, ठीक है, एक नॉर्मल सा आप वायर का टुकड़ा ले लो, ठीक है, वो अगर आपके सामने रखा हुआ है, ठीक है, तो नॉर्मल सा वायर का जो टुकड़ा रखा हुआ है एक्चुअली में उसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो कहीं भी कैसे भी मूव कर सकते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से मूव करते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी, जिसको जैसे मूव करना है वो वैसे मूव करता है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्री घूम रहे हैं। ऐसा किस में हो रहा है, कंडक्टर में हो रहा है। जब हमने सिर्फ सिंपल सा वायर रखा है, उसके कोई कुछ कनेक्ट नहीं किया, हमने ना सेल कनेक्ट किया ना कुछ और कनेक्ट किया, सिर्फ सिंपल सा वायर रखा हुआ है, और उस वायर के अंदर इस तरीके के छोटे छोटे फ्री पार्टिकल्स जो हैं, दैट आर इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, जिसका जैसा मन कर रहा है वो वैसे वैसे मूव कर रहा है, राइट। लेकिन तब क्या होता है, जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे बैटरी से, तब क्या होगा, एक्चुअली में तब ये होगा, जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, इसे सेल से कनेक्ट किया, ठीक है, तो क्या हुआ, क्या हुआ, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने आप मूव कर रहे थे। जैसे ही कनेक्ट किया, स्विच ऑन किया, तो क्या हुआ, ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, जैसे बिल्कुल डिसिप्लिन क्लास हो। एक तो ऐसा क्लास है, ठीक है, जिसमें जब टीचर नहीं आई तो बच्चे बहुत उधम मचा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, रैंडमली कहीं भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे ही टीचर एंटर होती है, सब बच्चे बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर और एक साथ जो है एक ही डायरेक्शन में मूव करके बैठ जाते हैं। तो वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा है, ये बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही सेल को कनेक्ट किया जाता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल डिसिप्लिन होकर एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। कौन से डायरेक्शन में, टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल।
सारे के सारे मूव करते करते कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे, ठीक है। एंड ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा, कैसे जाएगा, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। सो दैट्स हाउ इलेक्ट्रॉन्स मूव इनसाइड अ कंडक्टर। जब जब आप इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट नहीं करोगे तब तब तो रैंडमली कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक सेल को कनेक्ट किया, स्विच ऑन किया, वैसे ही क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डिसिप्लिन हो जाएंगे एंड दे ऑल गो इनटू दी पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो वो नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हुए सारे के सारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाने लगेंगे एंड करंट फ्लो होने लगेगा, कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किसी भी वायर में फ्लो होता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि क्या आप इन सबको ड्रॉ कर लें, ठीक है, दैट इज व्हाट यू नीड टू मेक श्योर। ऑल्सो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो मूव करते हैं दे कंस्टिट्यूट द करंट, ठीक है। इनका मूवमेंट ही एक्चुअली में क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। सो नोट देम डाउन वेरी फास्ट। Alright, so that was in this lecture and this is the end of our lecture. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and also do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Also you can comment if you have any comment, right? अगर आपके पास कोई comment हो only तो. So thank you so much.